Assalamu alaikum, dear students, and a very good morning. Hope you are doing well. So, let us continue with our online classes, and today's lecture will be related to adverbs. Students, the SLOs are quite simple. We have to gain knowledge regarding adverbs and its types. We should have an understanding of its usage with respect to other parts of speech. And so, what are adverbs? Why we need to study them? What is our understanding of the adverbs and its types, and what are the complications? We these are some of the questions that I would like to answer during this presentation. But the most important thing is you will find something new from this presentation, as traditionally you have studied very few types of adverbs, but in this presentation I have collected at least 10 types of adverbs. Some points are very important and they have been discussed in the later slides or the upcoming slides, but the types are just described briefly so that you may understand the difference between each type of adverb. Apart from that, I have also shared with you at the end of the presentation, I have shared 5 images from eslforums.com, which are adverbs related to, which are lists related to adverbs, and the total number of adverbs used in the English language. So, the quick answer is regarding adverbs, or the definition is which we use to modify the meaning of adjective, verb, or other parts of speech. It is one of the parts of speech which tells us how, where, when, in what manner, and to what extent an action is performed in the sentence. So you have to keep in mind that it modifies the meaning of an adjective as well. Usually we say adjective modifies the meaning of a noun, or modifies a noun actually, but here adverbs are usually used to modify verbs, adjectives, and to some extent other parts of speech as well, depending on its usage within a context. So you have to be very vigilant regarding adverbs. The only big difference between an adjective and an adverb is an adverb. An adjective is constantly modifying a noun or relevant to a noun. We know the difference between noun which comes. We definitely know about the adjectives that come before the noun and those that come after the noun. But with adverbs, it's a different story. One example would be type of from one type of an adverb and also another and also present in another type of adverb. So what we need to understand is from the various definition of adverbs, the types of adverbs, is the usage of how that adverb is used in their context. Keep in mind the example consequently. Keep in mind the example consequently, because in the later part of the lecture I will explain the usage of consequently with respect to two different types of adverbs. So some of adverbs end with ly, which are used to express how an action is performed, such as carefully, gracefully, cheerfully, quickly, steadily, speedily, happily, foolishly, angrily, etc. Traditionally, you have been taught that adverbs usually end with ly. This is not the case. There are certain adverbs which do not have an ly ending, such as never, now, most, for, least, more, less, there, etc. So there are these two characteristics that you need to keep in mind. It is always not necessary that an adverb will end with an ly ending. There are adverbs which do not have an ly ending, and here are the examples. When we discuss the various types, we will come to understand and know the difference between the ly ending adverbs and the remaining ones. Now, you need to keep in mind the definition that an adverb describes a verb, an adjective, or another adverb, or any other parts of speech. So it has a multiple role. Therefore, because of its multiplicity, it has multiple types as well. So far, I have collected 10 types of adverbs, which were usually 4 or 5 or 3, depending upon our
pattern, or what one could say, the requirement by federal board. But we need to understand these concepts because we need to find out the difference between the adverbs and other parts of speech. So usually it's an ny ending, usually it describes an adjective, a verb, or an adverb. We can also recognize an adverb by seeing its function in the sentence, whether it's describing a noun, an adjective, or an adverb, and if it is describing a noun, how it is describing a noun. Is it just like an adjective? So basically an adverb is usually mostly related to parts of speech which can be anything. So we have to be very vigilant regarding the study of the various parts of speech. So these are certain examples. I have tried to explain them in the bracket section. I'm giving you a few seconds so that you may be able to take a snapshot of these examples. These are generic examples that you have studied in your previous previous classes as well. So I hope you get a lot from these examples. I hope you have noted down the examples and tried to understand the adverbs that have been mentioned in these examples. These are very simple examples. These are just to clarify your concept of adverbs. However, we will continue further and bust some more myths as well. Now, there is also a mistake that we commit when we are using adjectives and adverb. For example, I behaved very bad in the school. This is the second point or the second bullet. It is wrong sentence, as bad is an adjective describing a verb behaved. I behaved very badly is the correct sentence because here badly is an adverb and describing a verb behaved. So this is how it is usually done. Sometimes we make this mistake, and you should remember that you should not mistake an adjective for an adverb or an adverb for an adjective. Adjective is quite clear, it qualifies a noun. However, an adverb qualifies a verb or modifies a verb, another adverb or another adjective, and certain other parts of speech. Also remember, we also confuse the usage of adjectives and verbs such as good and well. Now, good is an adjective and well is an adverb. Now, in the example, he is a good boy, he is a good person, he is good. These are all in this context. Good is an adjective describing a pronoun, describing a person. I listen well. I listen well is another example. In this sentence, listen is the verb which has been described by the word adverb well. I am a well-educated boy. Now I am a well-educated boy, and here you have I am a के बाद है well is an adverb. बॉय नाउन है, बॉय से पहले एजुकेटेड है, तो ये ऑटोमेटिक सी बात है, ये वाला एजुकेटेड जो है ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है. वेल एजुकेटेड बॉय. वेल को फर्दर मॉडिफाई किया गया है वेल से. सो एजुकेटेड इज एडजेक्टिव, वेल इज एडवर्ब एंड बॉय इज द नाउन which is being qualified by the adjective educated, and educated is modified by the adverb well. Now there are various types of adverbs, but so for this presentation I have tried to collect all of them together in this single presentation, and the total number that I have collected so far are 10. In traditional grammar, usually we did a few of them, normally 4 or 5, but in this presentation you will find 10 types of adverbs. So going to the first type, adverb of time. Adverb of time is an adverb which tells us about time.
अच्छा बेटा, ये तो बड़ी ट्रेडिशनल सी डेफिनेशन है, आप स्लाइड को देखें, इसको पढ़ें, लेकिन मैं जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। एडवर्ब ऑफ टाइम में येस्टरडे, टुमारो, ये लफ्ज़ तो हम नॉर्मली एग्जांपल्स में देते हैं, लेकिन इसमें अगर बाकी एग्जांपल्स आप देखें तो ऑलरेडी भी है, आफ्टरवर्ड्स भी है, इमीडिएटली भी है, सून भी है, देन भी है, नाउ भी है, ये भी उसकी एग्जांपल्स, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, एडवर्ब ऑफ टाइम में टाइम की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। मसलन अगर इवन यस्टरडे की मैं बात कर रहा हूँ या टुमारो की बात कर रहा हूँ ना बेटा, तो यस्टरडे एंड टुमारो डज नॉट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर टाइम। या मैं लास्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, लास्ट मंथ कंबाइन एडवर्ब है, यहाँ पे आप देखें कि मंथ जो है वो बेसिकली नाउन है, लेकिन लास्ट मंथ मिल के तो एडवर्ब ऑफ टाइम बनता है। अच्छा, अब मसला ये है कि यस्टरडे में कौन सा टाइम, 3 बजे, 6 बजे, 7 बजे, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, रात के टाइम, कौन से टाइम। सो देयरफॉर एडवर्ब ऑफ टाइम में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती, ये आपने जहन में रखना है। काइंडली नोट डाउन द स्लाइड एंड रीड द एग्जांपल्स एज वेल। नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस। Adverb of place में definition is quite clear. Adverb of place is an adverb which tells us about the place where something is done or happens in the sentence. It is used generally after the verb, object or end of the sentence. Yes, ये point पिछली slide में भी था कि adverb of times are used in the beginning as a form of emphasis or end of the sentence. यहाँ पे ये है कि ये as object और end of the sentence के तौर पे यूज़ होता है। below, above, inside, outside, there, over, अंडर, अपस्टेयर एटसेट्रा। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस में कुछ आपको प्रपोजिशंस भी मिल रही हैं, जैसे ओवर, अंडर, अबाव, अब ठीक है, बिलो, ये प्रपोजिशंस के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं। अब वही वाली बात आ गई है कि प्रपोजिशंस को तो खैर मैंने आपको एक शुरू के लेक्चर्स में एक इमेज शेयर किया था, द प्रोफेसर्स टेबल। वो अगर आपके जहन में हो तो आप इस कंसेप्ट को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि प्रपोजिशन और एडवर्ब में क्या फ़र्क है। बहरहाल हमने अभी प्रपोजिशंस नहीं किए, सिंपल सी बात है, एडवर्ब की पोजीशन क्या है, एडवर्ब कहाँ पे है। अगर ये अबाव, बिलो, अंडर जो है ये किसी वर्ब की हालत को बता रहे हैं तो फिर तो ये एडवर्ब है, लेकिन ये अगर सेंटेंस के अंदर जस्ट वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लैरिफाई करने के लिए यूज़ किए गए हैं बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो फिर वो प्रपोजिशन होंगे। बहरहाल जब प्रपोजिशन की हम एक्सरसाइजेस करेंगे, जब उस टाइप को हम डिस्कस करेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ समथिंग इज़ डन, हाउ समथिंग इज़ डन और हैपन्स इन द सेंटेंस, दिस इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे कि नाम से जाहिर है, एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ को डिफाइन करता है। इसमें ज़्यादातर जो एडवर्ब्स हैं वो ly एंडिंग वाले इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है। ये ly एंडिंग की जो मिथोलॉजी है ना कि एडवर्ब होगा तो उसकी एंडिंग ly पे ही होगी, ये गलत है। ये हाँ, ly एंडिंग वाले अल्फाज जो होते हैं वो जनरली या मेजॉरिटी वो एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं कि हर एक एडवर्ब जो है उसकी एंडिंग ly पे हो। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप इन एग्जांपल्स को देखें और एडवर्ब ऑफ मैनर की डेफिनेशन को देखें, आपको काफ़ी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी इज एन एडवर्ब विच टेल्स अस अबाउट द लेवल और एक्सटेंट ऑफ समथिंग इज डन और हैपन्स इन द सेंटेंस। इट इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। एडवर्ब्स और डिग्री और क्वांटिटी आर लाइक ऑलमोस्ट, नियरली, क्वाइट, मच, रियली, टू, वेरी, सो एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज टू हार्ड फॉर, या इट वॉज टू हार्ड टास्क फॉर अस टू कंप्लीट, इसको ऐसे कर लें, दिस टास्क वॉज टू हार्ड फॉर अस टू कंप्लीट। आई एम क्वाइट, आई एम क्वाइट को काट दें, आई एम फीलिंग रियली सैड फॉर माई फ्रेंड्स फादर्स डेथ। ठीक है, आई एम फीलिंग रियली सैड, यहाँ पे रियली और पिछले वाले सेंटेंस में इट वॉज, ये जो टू लफ्ज है ये एडवर्ब्स हैं। Adverb of frequency. Adverb of frequency is an adverb which tells us how often something is done or happens in the sentence. How often, कब,
हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा। फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल्स देखें। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज लाइक ऑलमोस्ट, अगेन, फ्रीक्वेंटली, जनरली, एवर, हार्डली, नेवर, नियरली, नियरली ऑलवेज, ऑलवेज, ओकेजनली, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स एंड वीकली। For example, my parents were almost 30 when I was born. Almost. He studies hardly during holidays. She thinks she's always right, however, it is not so. He told that he will never talk to me. I talk to my neighbors very occasionally. So these are how frequencies are defined. Adverbs of affirmation and negation. Negation की spelling heading में गलत है, ए जो है इजाफी है, काइंडली इसको करेक्ट कर लीजिए. Adverb of affirmation and negation is an adverb which confirms or denies the action of a verb in the sentence. It is also used to reinforce the action of a verb. Adverbs of affirmation are like definitely, surely, certainly, absolutely. However, adverbs of denial or negation are like no, can't, don't, never, etc. For example, I will certainly go to school. नेवर यू लीव यू अलोन. अच्छा, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है. अब अगर आप देखें ना नेवर, तो नेवर जो है ना वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी आता है, और नेवर जो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन में भी आता है. तो अगर तो सवाल उसका बने इस किस्म का कि जिसके जवाब में हाँ या ना का सीगा इस्तेमाल हो, हाँ या ना का, यानी मैं कुछ सवाल करता हूँ और उसका जवाब हाँ में आ रहा हो या ना में आ रहा हो, कंफर्म, तो फिर वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगा नेवर. अगर नहीं ऐसा तो वो फिर फ्रीक्वेंसी हो सकता है, वो फिर फ्रीक्वेंसी हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी जर्नली, मैं आपसे सवाल करता हूँ, वुड यू लाइक टू बाय क्लॉथ्स फ्रॉम आवर सुपर स्टोर, और आप जवाब देते हैं नो, आई विल नेवर बाय मोर क्लॉथ्स फ्रॉम योर सुपर स्टोर. तो ये तो निगेशन हो गई. फिर एक नेवर का इस्तेमाल होता है कि मसलन आप कहीं गए हैं और आपका एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, तो फिर आप कहते हैं आई नेवर थॉट दैट सच एंड सच थिंग वुड हैपन, दैट दे वुड मीट दियर फेट दियर. यानी आप किसी इंसिडेंट को डिफाइन कर रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी के साथ बुरा वाक़या पेश आ गया है. आई नेवर थॉट, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा. तो फिर वो जो नेवर है वो जो है वो फ्रीक्वेंसी वाला होगा, और ये जो नेवर है जिसमें मैं जवाब दे रहा हूँ कि नहीं मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आऊँगा, तब वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगा. इसका सिंपल फार्मूला है, उसको ट्रांसलेट कर लें. अगर जवाब ऐसा शो हो रहा है जैसे कि ये इसमें था कि नहीं, कभी भी नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, या कभी भी नहीं आऊँगा, या कभी भी नहीं पहुँचूँगा, या कभी भी नहीं कहीं, तो फिर तो ये नेगेशन होगा. लेकिन अगर जो ट्रांसलेशन उस तरह की बनती है जैसे कि पहला केस मैंने बताया था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो फिर वो नेगेशन में नहीं शुमार होगा. तो ये आपने डिफरेंसेस का ख्याल रखना है. Adverb of comment जो है, using adverbs of comment we can make a comment on entire sentence. This adverbs can change and describe the verb as well as influence the whole sentence. Adverb of comment like are fortunately, unfortunately, patiently, honestly, obviously, constantly, etc. For example, unfortunately he got discharged from his post. Luckily I got admission in the top. यानी ये बेसिकली एडवर्ब ऑफ कमेंट जो है ये एक सिंगल वर्ड्स जो है ना, सिंगल वर्ड. अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन हम कर रहे हो ना, नॉर्मल कन्वर्सेशन, और हमने एक वर्ड में जवाब देना है, तो एडवर्ब ऑफ कमेंट एक अच्छी उसकी एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल सवाल होता है वो बंदा कहाँ है, या वो जो यहाँ पे प्रिंसिपल साहब थे या वाइस प्रिंसिपल साहब थे या कोई भी जॉब पोजीशन थी, वो कहाँ पे है. तो हम जवाब देते हैं फॉर्चुनेटली ही हैज़ बीन प्रोमोटेड, या अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ बीन डिस्चार्ज. तो ये जो फॉर्चुनेटली है ना, ये क्या कि खुशकिस्मती से, इससे मुराद ये है कि आगे जो बात आने वाली है वो एक अच्छी न्यूज़ है. या बदकिस्मती से, तो इससे मुराद ये है कि बदकिस्मती से मतलब वो कोई अच्छी खबर आपको नहीं मिलने वाली. लेकिन अच्छा, फिर मैं सवाल करता हूँ कि आपको एडमिशन मिल गया, डिड यू गेट एडमिशन इन अ कॉलेज. आप सिंपल जवाब दे सकते हैं लकीली, खुशकिस्मती से, मेरी अच्छे नसीब,
आप लकीली कह के भी इसका जवाब मुझे मिल गया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ जी आपको एडमिशन मिल चुका है। और अगर सेंटेंस पूरा लिखना है तो आप कह सकते हैं लकीली आई गॉट एडमिशन इन द टॉप कॉलेज। तो एडवर्ब ऑफ कमेंट के जो जो अल्फाज हैं ना, ये जो मतलब एक सिंगल लफ्ज़ से आप पूरी सिचुएशन को अखज़ कर सकते हैं, दैट्स उनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ कमेंट। एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन या कंजंक्टिव एडवर्ब, ये बड़ा सिंपल है। इसमें ये ख्याल रखना होता है बेटा कि एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन जो है वो बेसिकली दो क्लासेस को जोड़ता है, और ये है तो एडवर्ब, ये है तो एडवर्ब, लेकिन इसके अंदर सेमी कॉलन का इस्तेमाल होगा पहली क्लास के बाद, फिर एडजंक्टिव एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन यूज़ होगा, उसके बाद कॉमा लगेगा और आप दूसरी क्लास को जोड़ेंगे। अगर आप एग्जाम्पल को देख लें, अच्छा नीचे एग्जाम्पल्स भी हैं, अकॉर्डिंगली, कॉन्सिक्वेंटली, अगेन, कॉन्ट्रेरली, ऑलमोस्ट, एज अ रिजल्ट, बिसाइड्स वगैरह। लेकिन ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसको देखिएगा, मैंने इसमें दो क्लासेस दी हुई है। पहली क्लास है ही वॉज गोइंग टू अटेंड एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और दूसरी क्लास है ही मेड श्योर टू अटेंड मीटिंग ऑन टाइम। अब अगर मैं इसमें एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन यूज़ करूं तो दो क्लासेस को जब मैं जोड़ता हूं, ही वॉज गोइंग टू अटेंड एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, उसके बाद मैंने क्या किया है, सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया है। अकॉर्डिंगली मेड श्योर टू अटेंड द मीटिंग ऑन टाइम, मैंने दो क्लासेस को जोड़ा है और उसके अंदर मैंने कंजंक्टिव एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो इसको हम कंजंक्शन नहीं कहते, इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन। और इसकी निशानी क्या है कि इसके साथ क्या यूज़ हुआ होगा, इसके साथ सेमी कॉलन का इस्तेमाल हुआ होगा। एडवर्ब ऑफ रीज़न, adverb of reason is used to express the reason for, answer the question or purpose of an action in the sentence. Adverb of reason are like therefore, hence, thus, consequently, so, since, etc. For example, I was not working hard, therefore I failed. Consequently, he denied to come to the party. अब मैंने यहाँ पे consequently को जानबूझ के यूज़ किया है क्योंकि consequently जो है adverb of conjunction भी है, लेकिन बेटा फ़र्क फिर भी वही है। एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन में क्या होगा कि उस कॉन्सिक्वेंटली को जब हम एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन के तौर पे यूज़ करेंगे तो वो क्या बनेगा, उसके साथ क्या होगा, उसके साथ सेमी कॉलन का इजाफा होगा। अच्छा, ओकेजनली जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम भी है, लेकिन कंजंक्टिव एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है, लेकिन उसकी निशानी क्या है कि वो दो क्लासेस को जोड़ेगा। जब दो क्लासेस को जोड़ेगा विद सेमी कॉलन तो तब वो कंजंक्टिव एडवर्ब होगा, वरना वो एडवर्ब ऑफ रीज़न होगा या फिर वो एडवर्ब ऑफ टाइम या कोई अदर टाइप भी हो सकती है। एडवर्ब्स ऑफ नंबर, नंबर जो है वो शो करते हैं कि मतलब या तो उसकी तरतीब को शो करते हैं किसी चीज़ की, एडवर्ब ऑफ नंबर, या फिर कोई इनडेफिनेट नंबर शो करते हैं। इनडेफिनेट नंबर जिसमें वाज़े ना हो, जिसमें वाज़े ना हो कि एक्चुअल नंबर क्या है, एक्चुअल फिगर क्या है। फॉर एग्जांपल, फर्स्टली, सेकेंडली, ये तो तरतीब हो गई, और वंस, ईयरली, नेवर, ट्वाइस, लाइसली, एक्सेट्रा। अब इसमें कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं शो हो रहा, जस्ट एक बताया जा रहा है, एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन इससे ये वाज़े नहीं हो रहा कि ईयरली से मुराद क्या है। ईयरली से मुराद एक दफ़ा है, 10 दफ़ा है, 5 दफ़ा है, 6 दफ़ा है, उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, उसको डिफ़ाइन अलहदा से करना पड़ेगा। सो इन अल्फाज से टाइम या वो फ्रेम वाज़े नहीं होता। हाँ, तरतीब हम वाज़े कर सकते हैं। अगेन, फर्स्ट सेकंड आपको पता है कार्डिनल्स हैं, फर्स्ट सेकंड आपको अच्छी तरह पता है कार्डिनल्स हैं एडजेक्टिव, लेकिन इसके साथ चूंकि एल वाई एंडिंग आ गई है, फर्स्टली सेकंडली क्या बन गए, आपके एडवर्ब्स बन गए हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इनको पढ़िए। अच्छा, he saw me once वाली एग्जाम्पल पे जाइए। इन दिस सेंटेंस once is an adverb of number, however it can also be adverb of time, depends on how it is used in this sentence। अब ये पीछे भी मैंने जो स्लाइड्स थी उनमें कॉन्सिक्वेंटली की एग्जाम्पल दी, उसमें और काफ़ी एडवर्ब्स की एग्जाम्पल दी। एक एडवर्ब लाजमी नहीं कि एक ही कैटेगरी में फॉल करे, वो 2-3 कैटेगरीज या टाइप्स में भी फाइल कर सकता है, डिपेंड करता है यूजेज के ऊपर कि वो यूज़ कैसे हो रहा है। सो बैक चलते हैं दोबारा से एक दफ़ा।
सो हमने स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ एडवर्ब। सबसे पहली टाइप आपके पास आई एडवर्ब ऑफ टाइम, उसके बाद टाइप आई एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद टाइप आई एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, एडवर्ब ऑफ कमेंट, एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ नंबर, और ये 10 टाइप्स कंप्लीट हो गई। अब बच्चों आपके साथ मैंने 5 स्लाइड्स और शेयर करनी है। ये बेसिकली लिस्ट है एडवर्ब्स की, ए से लेके जेड तक। आप अगर इस को नोट करें तो बिल्कुल इसके एंड पिक्चर पे लिखा हुआ है eslforums.com। इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, इंग्लिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर की दूसरी एक्सरसाइजेस के हवाले से इंतहाई रिलायबल ये रिसोर्स है इंटरनेट पे। आई वुड लाइक कि आप लोग ESL फोरम्स का विज़िट किया करें। इसमें मुख्तलिफ ग्राफिक्स होते हैं, इसमें मुख्तलिफ वो होते हैं। मैं अपनी प्रेजेंटेशंस में इनसे लाजमी हेल्प लेता हूँ क्योंकि इनके पास काफ़ी चीज़ें अथेंटिक होती हैं और लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन होता है। तो लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स है इस वक्त, ये तकरीबन 5 इमेजेस हैं बेटा। ये ए से लेके जेड तक जितनी भी एडवर्ब्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उनकी कंप्लीट कंपाइलेशन है। और ये ले पहली जो पिक्चर है ये ए से लेके ई तक है, फिर इसी तरह ई से कंटिन्यू करके के तक है, फिर आई से पी तक है, फिर पी से एस तक है, और इसी तरह एस से लेके जेड तक। तो ये 5 पिक्चर्स हैं। मैं दोबारा से इनको कुछ सेकंड्स आपको देखता हूँ ताकि आप उनकी पिक्स ले सकें। अदरवाइज़ मैंने आपके साथ सोर्स डिक्लेयर कर दिया है। आप इस सोर्स पे जाएं, यहाँ पे लिखें लिस्ट ऑफ एडवर्ब्स ESL फोरम्स, आपके सामने इमेजेस खुल जाएंगी। बस आपने एहतियात करनी है कि आप वही लिस्ट सेव करें जो कि यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन के दौरान मेंशन है। सो दीज आर द डिफरेंट पिक्चर्स। उम्मीद है यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। एडवर्ब्स की 10 टाइप्स थी, 10 टाइप्स आर मोर देन व्हाट हैव यू स्टडीड सो फार विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स। Adverbs is something, its complication is based on how an adverb is used, how it is used in a sentence. इसकी सबसे बड़ी जो complication है वो ये है कि एक adverb जो है वो एक तो ये है कि verb के अलावा adjective को और ख़ुद adverb को भी modify करता है। तो ये दूसरी इसकी जो कम्प्लिकेशन है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब अक्सर आपस में कंफ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूजन उसमें हो जाती है। थर्ड इसकी जो कम्प्लिकेशन है कि हम लोग बेसिकली जो साइंस के ख़ुसूसन स्टूडेंट्स हैं जिनका लैंग्वेज से कम ही अमूमन इंटरेक्शन होता है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंस देते हैं साइंस या मैथमेटिक्स को, वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि साइंस और मैथमेटिक्स में जो डेफिनेशंस होती हैं वो हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं। वो डेफिनेशन बन गई, जब तक कि उसको नेगेशन की कोई डेफिनेशन नहीं आई या उसके ख़िलाफ़ कोई रिसर्च नहीं आई, वही डेफिनेशन आपको रट्टा लगाना पड़ेगा और रटनी पड़ेगी उसको, डेफिनेशन को एज इट इज़ पेपर में लिखना होता है। लेकिन लैंग्वेज का मसला ये है कि लैंग्वेज में हार्ड एंड फास्ट रूल्स कुछ हद तक तो हैं, लेकिन सर्टन लिमिटेशंस के बाद वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं रहते, क्योंकि लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन माइंड, और ह्यूमन माइंड कॉम्प्लिकेटेड है, इज़ नॉट दैट सिंपल लाइक जाउल्स लॉ और ओम्स लॉ। सो दैट्स वाई ये नहीं कह सकते हम कि एक एडवर्ब एक ही कैटेगरी में फॉल करता है। वो 2 कैटेगरीज में भी हो सकता है, 3 कैटेगरीज में भी हो सकता है, 4 कैटेगरीज में भी हो सकता है। सो आप ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स उन पर डिफाइन नहीं करते। मैंने कोशिश की है कि वो एडवर्ब्स उनको बता सकूं जो कि 2-3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि एक प्रेजेंटेशन में इन तमाम एडवर्ब्स को कवर करना आसान नहीं होता। इसलिए मैं आपके सामने ये लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, और इन लिस्ट शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप एडवर्ब्स को पहचान लें, उनको समझने की कोशिश करें और इन टाइप्स के कंटेस्ट में इन लिस्ट को अपनी राइटिंग में इन लिस्ट को अपनी राइटिंग में डिवाइड कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसमें आप अगेन नेट से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो वो कंफ्यूजन आप अपनी दूर कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, एंड आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी लेटर।
डेफिनेटली आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी।